Nuri wakes up to the sound of a huge storm blowing. She wakes up in a jolt. She looks around. She can't recognize anything around her. She walks past the neighborhood. There is not a single tree. Everyone looks the same. They are all wearing the same clothes. She can hear sounds of drones, bulldozers, and wailing sirens at a distance. Nuri gets scared and tries to escape, but the walls feel like they're closing in on her. She runs away on a long journey across rivers, valleys, deserts, forests, and the insides of city bylanes. Along her way, she meets musicians who tell her stories and sing her songs. Listening to them, she discovers new maps and routes to find a sense of belonging. Adventures of Nuri is a podcast series tracing her travels with music, memory, and identity. Episode 7 Nuri in the Lattar. I got off the train at Patna after a 3-day-long journey on the Sanghamitra Express, a train that most migrant workers in India take back home. Now, I need to travel on to reach Ara. A story has brought me here. A few years ago, I stopped to eat lunch at a Bengali pada near a railway station where they serve very simple food: dal, rice, fish fry and posto. Shobha Didi has been running this community kitchen for migrant workers constructing the metro here in the outskirts of the city. She told me my food will always sell here. Workers can never adjust to this tamarind-flavored sambar. A group of men sat next to me. They started singing a song which I had heard somewhere before. It's Bhojpuri. Then I suddenly told one of them, भैया, क्या आप ये ट्यून को पहचान सकते हो? And I started singing. अच्छा, ये तो पूर्वी है. तुम्हें कैसे पता? Then they started telling me how the pain of separation is expressed through songs in Bihar. Have you heard of Nirgun? They asked me. They told me that Nirgun is a space beyond what we can see. Go search for Nirgun. Your soul can be consoled in the hardest of times. For us so far away from home, it is only these songs that allow us to sleep in peace. Where do I find them? I asked. Go meet our friends Raju, Piyush, Sunaina and Sipahi. We will tell them to pick you up from Ara. Take the train. Only then you will understand how far our homes are. And only when you sweat will you know the importance of wind. Go listen to Purbi, Videsya and Nirgun. When you come back, bring us some kasundi and kalonji seeds. You will find us here only. That was a long journey, but I will never forget seeing the landscape change, listening to different sounds and songs along the way. I got off the train to see Raju, Piyush, Sunaina and Sipahi outside my compartment. They immediately recognized me. चलिए, आरा के लिए निकलेंगे अभी. You have come to the sea of songs. Your heart will melt, they said. मोहिले हम जैसे कि एगो लड़की है, लड़की को बिया अपना ससुराल गइल बिया. ससुराल गइल बिया तो ओकरा पहिले होइले कुछ बुझात नहीं खे कि भाई हम या कैसे हम
पानी भरे जाई, कैसे हम बर्तन छिपा मलब, हम केने रही, ओकरा कुछ बुझात नहीं खे। तो कहतिया लड़की है कि पहिले वहिले हम अरे ओइनी गमनमा, तो सासु भेजे पानी के हो राम। अब वो जो लड़की जाती है पानी भरे खाती, देखते पहले कुआं रहत रहे पानी भरे खाती, रस्सी लागी खिंचाई कल उल ना रहे। तो देखो जो लड़किया भड़कल बिया, देखी के कुआं के रीत, वो जो हंसतिया मुस्कातिया कि दादा हम का करी, कैसे हम पानी भरी। तो देखनी कुइया के रीत तो मन मुस्काई ले राम। भैले अरे कुआं पर भीर गागर सिर फूटी गोइले हो राम। जैसे कि लड़की जैसे पानी भर के कपार पर लेके चल दिल से अपना घरे, तो आदमी 10 गो धागा कैले बड़े, धागा ओका में बिचलहर में गिर गया, फूट गया। तो लड़की अब कहते कि अब कौन बहाना, का हम अपन माई से कहब, का हम बाबू से जवाब हम देव, तो गगरी फूट गई। भैले कुआं पर भीड़ तो गागर सिर फूट गईले हो राम। केवन बहाना घरे करब, हाथ दुनो छूछे भैले राम। तो सासु मोरे अब सुतली अरे मोहलिया, ननद गजऊ पर हो राम। अरे सोइया हमार सुतले मोहलिया, अरे सोइया हमार सुतले मोहलिया, आ कैसे के जगह ई बिये राम। कहते कि हमार माई सुतल बिया भिरिए, ननद सुतल बाड़ी, अब सोइया से हम का जाके हम बात करब, अब तो ऐसे हम फेर में पड़ल बानी। तो लड़की अपन मन में सोचतिया उठ उठ अरे नदी छूल छन, अरे नींद तोहर बा और ये राम। वो हल्ला करती है लड़किया कि उठ उठ घर में, कैसे सुतल बाड़ी, चोर समाइल बा घर में। जैसे कि चोर समाइल बा, उठबू तब हम जनबू तो हाँ पानी उनी दिले नहीं खे। तो उठ उठ नदी छूल छन, नींद तोहर बाऊ रे राम। ढुकले मोहलिया में चोर तो कैसे के जगाई बिये राम। तो लगी कहतिया कि नैना, जैसे आँख में नैना के करब कमान, सूरत में बढ़िया रहे, सूरत में गुनाह करे राम। प्रेम प्रेम के बांध चला के चोर बिलमाई बे राम। कहते कैसे ना हो, प्रेम से बेकार का बिलमाई। तो नैना के कैलस कमान, आके नैना के करबी कमान, सूरत गुनाह बे राम। प्रेम के बांध चला के तो चोर बिलमाई बे राम। तो निर्गुण ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे कहानियाँ बताई जाती है इसके ज़रिए। उसको तो मटका फूट गया और उसको अनुभव है नहीं पानी भरने का। पहली बार दूसरे गांव में गई अपने घर से, तो वहाँ के कल्चर के बारे में उसको कोई जानकारी है नहीं। और पहला दिन ही सास जो है उसकी, वो भेज देती है काम के लिए कि जाओ पानी भर के लाओ। तो पानी भरने जाती है तो देखती है कि वहाँ कुछ है नहीं, पानी निकाले तो कैसे निकाले, माने इनार जो होता है उससे पानी निकालेंगे तब ना बाल्टी में अपने जहाँ मटका में रखेंगे। तो उस लड़की का माने दुख है, और निर्गुण जो है दुख का ही माने गायन है। किसी के जाने के बाद, जैसे मान के चलिए कोई आदमी मर भी जाता है तो मरने के बाद निर्गुण गाया जाता है, माने दुख का गीत है निर्गुण, शांति का, शांति के लिए कि हमको ये मिले, दिल में शांति, दिल में शांति। तो जब जैसे कि बहुत सारे
पलायन मजदूर शहरों में आते हैं और जब वो उनके परिवारों से बिछड़ जाते हैं, उस पल में भी निर्गुण गाया जाता है? नहीं, उस पल में आपको पूर्वी गाया जाता है। पूर्वी क्या है? पूर्वी भी ये गायन शैली ही है जो पलायन के दर्द को महिलाओं माने प्रेम प्रसंग माने उसमें ज़्यादातर मिलेगा, और उसमें याद का वर्णन बहुत होता है, पति पत्नी का, या जैसे मान के चले पत्नी गांव में है और पुरुष जो है बाहर में है, पुरुष पत्नी को याद कर रहा है, पत्नी पुरुष को याद कर रही है, माने उनका प्रेम का दिन गांव का भी आपको गीतों में वर्णन मिलता है। तो वो चीज़ है। तो सुने सिपाही भी बहुत अच्छे गाते हैं। मतलब पति उनकर बाहर बाड़े आ देवर जौन बाड़े तू भौजैये भी सटा के खाटी सूत ताड़े, तो भौजा एहू कहले कि अब कैसे डांटी देवर के। देवरा अबाटी सैया सटा के सूते खाटी, कहीं हम कैसे डांटी। रउआ जाके बस गई नी गुवाहाटी, कहीं हम कैसे डांटी। कहताड़ी रउआ तो गुवाहाटी बानी, आई बाणे हमार जरिए सुता ताड़े। जाने या ना जाने जो बना के छुएले, जाने अनजाने में मतलब कि उसको टच करते हैं। जाने या ना जाने जो बना के छुएले, अब ही सुरतिया प दिन रात मुएले, दिन रात मुएले। अभी भी सूरत में मर रहा है देवर, और अपने पति से शिकायत कर रही है। रउआ जाके बस गई नी गुवाहाटी, कहीं हम कैसे डांटी। ये पूर्वी है। ये पूर्वी है। अपने श्रृंगार का दुख है और अपने मान सम्मान का दुख है। ठीक, वो पति से अपना माने ये कर रही है कि आप हमको अकेले छोड़ कह दिए, कि ये जो देवर और भौजाई का जो रिश्ता है वो कलंकित हो रहा है। इसलिए कि देवर भौजाई का रिश्ता बहुत अच्छे रूप में देखा जाता था, वो रिश्ता कलंकित हो रहा है कि मेरे बगल में वो अनमैरिड है और वो चाह रहा है मेरे साथ कुछ गलत करना, हम किससे कहें वो बात है। अच्छा, जैसे ये जो गाय, जैसे उस गीत में क्या था कि वो लड़की जो है पहली बार कहीं गई है, तो वो उसका माने कहा जाए कि पलायन वाला दुख नहीं है, सर्वाइवल का दुख है कि हम वहाँ कैसे रहेंगे, माने पहले दिन ही मेरे साथ ये हुआ था, कल क्या हो सकता है। तो अपना हर लिखने वाला का अपना अपना संदर्भ होता है। लेकिन ज़्यादातर पूर्वी, अब देखिएगा पूर्वी नाम इसलिए पड़ा कि पलायन से जुड़ा हुआ पूरब लोग जाते थे कमाने के लिए, तो उस शैली का नाम ही पूर्वी हो गया, जिसके पूर्वी के जनक कहे जाते हैं महेंद्र मिश्र। और बहुत सारे हुए और सिंगर बहुत माने अगाध मात्रा में है पूर्वी निर्गुण गाने वाले लोग। अब ये करीब करीब ख़त्म होने के कगार पर है, कब लोग बहुत इंटरेस्ट नहीं ले, सब लोग पूर्वी नहीं गा सकता है। ये गायकी का सबसे माने लोक संगीत में मुझे लगता है कि क्लासिकल वाला पक्ष है गायकी माने पूर्वी गाना, इसलिए कि इसमें उठान है, कटिंग्स है। जैसे इसमें 3 चौगुन में जाएगा तो 3 बार करता है, डारा 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 डारा। तो ये अच्छा कलाकार ही गा सकता है, मतलब हम हमारे जैसे कलाकार भी माने बहुत हम लोग गाने में पसीना छूट जाता है ये गाना गाने में, ऐसा फॉर्म है ये। तो आपको लगता है तो ये पूर्वी गायक पसीना छूट छूट कर फिर गा रहे हैं, इसका मतलब सुनने वाले भी बहुत है। हाँ, और ये अनुभव भी उनके लिए काफ़ी बहुत रोचक है। सुनने वाले दर्शक तो
माने अपने जीवन को रिलेट करते हैं उस गीतों में, देखते हैं इसलिए कि मुझे लगता है कि गाँव का कोई ऐसा घर नहीं होगा, जिसे घर का कोई आदमी पलायन नहीं करता होगा। जो मज़दूर क्लास का लोग है, जो लेबर क्लास के लोग हैं, उनके घर का माने हर घर के सदस्य 1-2 तो बाहर माने पलायन के लिए मिलते ही हैं बाहर में। एक जाता है, एक आता है, एक जाता है, एक आता है। तो हमको लगता है कुछ संदर्भ में भी अपने आप को देखते हैं और सुनने में अच्छा इसलिए लगता है कि इसमें कोई टोटल जो लोक इंस्ट्रूमेंट है, हारमोनियम है, ढोलक है, झाल है। माने इसका म्यूजिक का जो 3 ही चीज़ जो है और सुंदर बना देता है। उसमें कहीं से अपना ऑर्गन आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं ये तो एकदम ठेठीपन लगता है। का चाचा? अच्छा, और ये ज़्यादातर महिलाओं का बिरहा समझने की कोशिश करता है या दोनों के बीच का बिरहा, और गायक महिला और मर्द दोनों हो सकते हैं? दोनों का बिरह है। अब जैसे मान के चलिए भिखारी ठाकुर लिखते हैं अपने नाटक विदेशिया में, आखिर का गीत है कि खोलू खोलू धानिया से बजरा के वाड़िया हो कि हम हाय पियावा तोहार रे संवरिया, हम हाय पिया वा तोहार रे संवरिया, नहीं हम हाय रामा चोर बाटे मरवा से, नहीं हम हाय, नहीं हम हाय, नहीं हम हाय रामा चोर बाटे मरवा से, हम हाय पियावा तोहार रे संवरिया। अब इस गीत में विदेशी जो है अपने पत्नी को गांव में छोड़कर बाहर गया और बाहर में एक पत्नी के जाल में फंसकर वहां अपना प्रेम किया, रखेलिन रखा, उससे 2 बच्चा है। गांव से जो प्लान जो जाता है कौन बाबा है ना 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 बताते हैं, बटोही जाकर उसको कहता है कि तुम यहाँ ऐश कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे याद में तड़प रही है, वहाँ तुमको याद कर रही है, आज भी तुम्हारे इंतजार में बैठी है, तुम 10 साल से यहाँ लिया मना रहे हो, न 1 रुपया तुम उसको देते हो न कुछ करते हो। तब वो आदमी पघिलता है और दिन आता है घर पर, तो बजरा कमार मतलब ये दरवाजा ही नहीं वो कह रहा है कि खोलिए खाली दरवाजा, दिल का भी जो बजर कमार है अपना, कि अभी भी तुम हमको भूली नहीं हो ना, उसको खोलो, हम आ गए हैं, हम चोर नहीं हैं, हम तुम्हारे पिया हैं। तो मैंने बताइए दोनों का संदर्भ कितना बड़ा है। गाना मैंने दोनों के हिसाब से अगर देखिएगा, पूर्वी जो है मैंने पत्नी का भी उसमें है, पुरुष का भी वही है। हम ना रहबिए राजा जी, अब रौरी महलिया, सवतीन के बोलिया, सालताए राम, सवतीन के बोलिया। मतलब कि एक पुरुष का 2 औरत है, तो एक औरत बोलती है हम नहीं रहेंगे आपका महल में, क्योंकि बड़ी वाली जो है वो बहुत सारा ताना देती है छोटी वाली को, तो छोटी वाली बोलती है अब हम नहीं रहेंगे। तो दूसरा भाव जो बोलती है वो, एक मन करे घर में फसरी लगाई थी, महुरवा खाके मरती राम, महुरवा खाके। वो बोलती है कि एक मन करता है घर में फांसी लगा लें गला में, और कहती है कि मन करता है घर में आग लगा दें।
मतलब आग लगा दे। जैसे कि छोटी वाली लड़की पूछी, एक मजदूर गाना बजाते थे ना, तो वैसे ही गाना गाने वाले को और सुनने वाले को दिल को छूता है। हाँ। तो यही है कि जीवंत जो एक रिश्ता है, गीत और संगीत के साथ जो एक रिश्ता जो डेवलप होता है, माने एक ऐसा माध्यम है संगीत, मुझे जो लगता है कि सीधे दिल से कनेक्ट करता है। और जैसे आप सुनते हैं, उस धुन को सुनते हैं, जैसे निर्गुण है, निर्गुण अब जब सुनिएगा, अगर आँख बंद कर लीजिए, तो मैंने बहुत सारा उसका तो निर्गुण का इतना बड़ा विजन है कि उसमें आपको लगेगा कि ये हो क्या रहा है, क्या गा रहे हैं। जैसे एक निर्गुण में ही सिनरैनी है, सिनरैनी पद में लोग आते हैं, कबीर का भी निर्गुण लोग आते हैं, लेकिन सिनरायण स्वामी वाला जो निर्गुण लोग गाते हैं उसमें देखिएगा क्या है, याद हमको, हरे कौना विधि उतरबू पार हो, बोझले नैया सत्य गुरु खेवने हार। कि मैंने कौना विधि उतरा में पार, माने किस विधि से हम पार जाएंगे नदी के उस पार, उसका खेवनहार कौन होगा। काथी के नैया, काथी के नैया, काथी के करुआरवा, सूरती के लागल पतवार हो, बोझल नैया सत्य गुरु खेवनहार। ये जो जातीय कला है उसका यह निर्गुण है। माने चमार जाति के लोग निर्गुण गाते हैं, सिनरैनी गाते हैं, उनकी ये कला है, जिसमें कहीं उसमें अध्यात्म की बात नहीं होती है। माने कोई एक शक्ति है, कच्चा चाहिए ना बात बा, कौन शक्ति है जो हमको अभी तक जीवित रखी हुई है, वो कौन सी प्राकृतिक शक्ति है। माने कहीं उसमें भगवान गॉड्स का बात ही नहीं आता है, उसमें बहुत सारा है। लोग आते हैं कि बाबा हमारो गछिया लगैते, आम महुआ मरुद है, अरे वही रे बगिया पझुलुआ झुलैती, आम महुआ मरुद है। तो उसमें एक लड़की जो अपने बाबा से कह रही है कि बाबा जो हम गाछ लगाते, उस पर हम झूला झूलते हैं, तो कौन बाबा। तो आपने ये भिखारी ठाकुर का नाम लिया था अभी, और आपने कहा था कि विदेशिया करके एक नाटक है, तो ये किस संदर्भ में, ये कौन है और किस संदर्भ में ये लिखा था, किस लिए, क्या क्या मकसद क्या था इस नाटक का? विदेशिया नाटक का, देखिए विदेशिया नाटक का बहुत मतलब अगर निकालने वाला है निकालते हैं, हम भी निकालते हैं। एक तो मुझे लगता है कि जो प्लान है उसको लेकर है, दूसरा जो है महिलाओं का जो पीड़ा है कि पुरुषों के बाहर जाने के बाद घर में वो कितना पीड़ा झेलती है, एक एंगल वो भी है। तीसरा जो मुझे एंगल लगता है कि जिस दौर में ये नाटक लिखा गया था, उस दौर में सामंती व्यवस्था था, तो कर्जा लिया, शादी ब्याह में खर्च हुआ, तो भाई बाहर नहीं जाएंगे, नहीं कमाएंगे, तो पैसा कहाँ से लाएंगे। तो एक संदर्भ मुझे वो भी लगता है। तो उस दौर में ये नाटक लिखा गया, उसमें बहुत सारे गीत है, 12 मास का वर्णन है कि 12 महीना महिला कैसे अपना ये करती है, उसमें हर महीना का अलग अलग गीत है। 12 मासा जिसको हम लोग बोलते हैं, पूरा 12 मासा में 12 महीना का वर्णन है, 1 साल का वर्णन है।
वो एक माने ट्रेडिशनल फोक है, खास करके भिखारी ठाकुर के नाटकों में, खास करके विदेशिया नाटक में मिलता है। तो हर महीना का अपना रिचुअल है। ठंडी के गीत क्या है, जैसे ठंडी में उसमें गीत है ना, कैसे हड़वा बारहमासा में का बा ना ना बारहमासा में हड़वा में जड़वा, हड़वा में जड़वा, समाइल रे विदेशिया। जो हाड़ है उसमें ठंडा लग रहा है मुझे, वो विदेशी ऐसा कर रहे हैं ठंडी में। होली के उसमें गीत है कि अबीर के घोली घोली सब लोगे खेले होली, ई रंगवा में भांगवा परल हो विदेशी। आप होली में भी नहीं आए, सब लोग रंग अबीर, हमारा जो है जीवन का जो रंग भंग खत्म हो गया, पति नहीं है तो श्रृंगार खत्म हो गया। तो 12 मास का उसमें गीत है, 12 मासा में। तो जो भी आई मीन भिखारी ठाकुर से लेकर या जो भी आप सुनवा रहे हैं हमें, इसमें लगता है कि लोगों का अनुभव से ही ये गाने बने हैं। ओरल कल्चर देखिए इसलिए है, लिखने वाला कला नहीं है, कि जो श्रम करने वाले लोग हैं, जो कलाकार हैं, जो लोग कला करने वाले लोग हैं, वो माने भिखारी ठाकुर भी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। भिखारी ठाकुर का हम लोग आइकन इसलिए मानते हैं कि उस दौर में बहुत बढ़िया काम किया, जिसको भोजपुरी के शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी के शेक्सपियर उनको नाम दिया गया। तो ये माने बहुत पहले से चला आ रहा है, समझ गए ना। माने मुझे याद नहीं, हम भी जन्म लिए तो हम भी सुने कि निर्गुण क्या है, पूर्वी क्या है। हमारे पहले के भी पूर्वज लोग आते रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला 10 साल के बाद बचेगा कि नहीं बचेगा, इसलिए कि जिस तरीके से कला का रूप बदल रहा है, संस्कृति का रूप बदल रहा है, जो सत्ता प्रयोजित जो संस्कृति है, वो अपने हिसाब से अपने संस्कृति का निर्माण करना चाहती है। तो स्वाभाविक है कि जो गांव के कला है वो खत्म हो जाएगी। और उसके साथ गाने भी खत्म होंगे। तो होगा ही ना। अब कारण है कि कौन सुनना चाहेगा। मान के चलिए बहुत उतना डिमांड भी नहीं बढ़ेगा ना, जिस तरीके का अभी डेवलप हो रहा है, जिस तरीके के संस्कृति के अंदर अब संस्कृति जो डेवलप हुआ, आप हर भाषा में, मैंने हमको भोजपुरी की ही बात हम नहीं कर रहे हैं, हर भाषा में आप देखिएगा कि वो जो श्रृंगार रस जो है, बीरा रस जो है, प्रेम रस जो है, माने बिछड़ने का जो दर्द है, वो सब चीज़ करीब 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 खत्म होता जा रहा है, माने उसका रूप ही बदल जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर भी माने जो इतने भी माने काम करने की ज़रूरत है।
और डॉक्यूमेंटेशन कुछ खास है ही नहीं। कोई किसी के पास अगर सोचिएगा बहुत सारे कि उनके पास ये है, वो इनसे हमने जो सीखा वो हमारे पास आ गया, हमसे ये जो सीखे इनके पास चला गया। गिव एंड टेक वाला मामला है, लेकिन अब कोई सीखना ही नहीं चाहता है, इसलिए कि डिमांड नहीं है। अच्छा भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई यार ये गाने से क्या है, हम ये गाएंगे हाय रे वो ठलाली टाइप का। तो ये है। तो आखिर में आप इतने अच्छे गा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? आप इतनी आपकी आवाज़ में ऐसा लगता है कि इतना सारा अनुभव है, तो आप आप जन गायक होंगे या फिर? देखिए हम तो जन गायक हैं और लोक गायक दोनों हैं। तो जन गायक और लोक गायक में अंतर जो मुझे लगता है कि लोक गायन में भक्ति आंदोलन के बाद से जितने भी लोकगीत हैं उसमें अध्यात्म को इतना डाला गया कि हर जगह वही सीता राम राधा कृष्ण का वर्णन मिलेगा। कुछ गाने में जो पहले के लोग हैं जो माने प्रेम प्रसंग का गीत मिल सकता है, स्त्री प्रेम का गीत मिल सकता है, प्लान का गीत मिल सकता है, लेकिन बहुत सारे गाने जो है ना माने वही आध्यात्मिक वो बन के रह गया है, जो मुझे जमता नहीं है। तो एक तो वो एंगल है, और जन गायक का ये है कि जो जनता के जो सवाल है, जो जनता का दुख है, जैसे हम जन गायक में गाना हम माने जो मेरा फेवरेट गीत है लगता है कि ऐसन गांव बना दे जहां अत्याचार ना रहे, जहां सपनों में जालिम जमींदार ना रहे। माने सपना भी हम देखे, माने जालिम जमींदारों का जो कल्चर रहा है, जो हम सुनते आ रहे हैं कि जूता चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, वो आते थे तो रास्ता बदलना पड़ता था, तो हम सपना भी देखें तो उनका चेहरा हमको देखने को ना मिले। तो एक नए दर्शन की बात हो रही है। दूसरा चीज उसमें दूसरा लाइन आता है कि सबके मिले भरपेट दाना, सबके रहे के ठिकाना, कोई बस्तर बिना लंगटे उघार ना रहे। माने आज़ादी कितना साल बाद भी बहुत सी ऐसी आबादी है जो भी बिना वस्त्र के बिना है, उसके सर पर शरीर पर वस्त्र नहीं है, ढंग का खाना नहीं मिलता है, कुपोषण का शिकार में मर जाते हैं, इलाज के अभाव में मर जाते हैं। तो जन गायक का काम एक होता है कि एक सामाजिक जो परिदृश्य है उस चीज को देखना और उसको लाना, बताना लोगों को। तो इसलिए हम जन गायक और लोक गायक भी हैं। लोक में जो हमको अच्छा लगता है, जैसे इनसे मैंने गीत सीखा था, बीतैती राजा जी हो, माने ये पूर्वी है, पूर्वी है ना चाचा? अरे बीतैती राजा जी हो, बीतैती राजा जी, अरे बीतैती राजा जी हो, बीतैती राजा जी, एक दिन अरे सारी रतिया जगले में बीतैती राजा जी, एक दिन सारी रतिया जगले में बीतैती राजा जी, से जम लगवती से जरिया लगैती, इतर सेंट लगैती, से लगैती, से जरिया लगैती, इंतर सेंट लगैती, अपना अरे दिल के बतिया हंसी हंसी के बती ऐती राजा जी, एक दिन सारी रतिया जगले में बीतैती राजा जी। पत्नी जो है अपने पति से कह रही है कि आप कम से कम मेरे लिए एक दिन का भी तो समय दे दो, आपके लिए मैं बिस्तर लगाती, सेंट लगाती, और दिल का जो बात है आपसे हंस हंस कर हम बतियाते। तो ये प्रेम कितना है पति पत्नी का, कितना प्रेम होता है, उस पर ये गीत है। लोग इस हाल में क्यों हैं?
कोई ना कोई पावर चलाता होगा, हाँ तो उनके खिलाफ लाइक कोई गुस्सा इस तरह का भी कोई गीत है जो जहाँ पे अम, अलग भाव से गाना अम, रूप है गाने का। हाँ हाँ उसमें भी है ना, जैसे एक गीत है माने सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ है हम्म, कि बबुआ जन राइफल के गुमानी सामंती किला टूट के रही। हो बबुआ जन राइफल के गुमानी सामंती किला टूट के रही। माने उनके पास राइफल है, वो गरीबों पर वार करते हैं। तो गरीब का ये गीत है कि भाई राइफल के गुमाने मत बैठो, एक दिन तुम्हारा जो किला है ना, ये जो तुमने महल बनाया हो महल ढहेगा। ये 70 के दशक में माने 70-80 के दशक में ये गाना बहुत पॉपुलर था, जिस समय बिहार में लड़ाई चल रहा था। तो हम सुने थे, बस इतना ही मुझे याद है। तो उस दौर में और पलाय ये भी गीत है ना, माने एगो क्या बोलते हैं, मजदूर मजदूर के भी गीत है पूर्वी में, कुछ मजदूर वाला गीत। गीत बा इहो भिखारिये ठाकुर के बनौले में निहा के आजकल पर आजकल पर ना जैसे कि उ पहले ही से बनल, बाकी जौन वहाँ के बनौले बानी जौन लिखले बानी उ समय समय पर समय समय पर बुझाता कि ये समय के हा, वो समय के हा, ये समय के हा। वो ऐसा ज्ञानी रहनी है वहाँ के कि जौन बात कहिए तो सोचे कहिए। कौन गीत बताई? कहाँ हुई हैं सोना चांदी के गहनावा, कहाँ हुई हैं नया नया फैशन चलल मूंगा के गहनावा, उम्र बातें अभी लड़िका न दानावा, कहाँ हुई हैं सोना चांदी के गहनावा, कहाँ हुई हैं। आजकल के हीरो लोग के चलल फैसानावा, आ पाकिट में नोट ध के मारत लो जानावा, कहाँ हुई हैं सोना चांदी के गहनावा, कहाँ हुई हैं। तो मादा सिगरेट पिए मौगी खाले पानावा, आ कहत भिखारी हई हई रे जबानावा, कहाँ हुई है सोना चांदी के गहनावा का। भिखारिये ठाकुर के लिखल है, लिखले बानी कहत। तो उस दौर में देखिए संदर्भ के हिसाब से गीत भिखारी ठाकुर और बहुत सारे कलाकार बने रहे हैं, ठीक ना। जैसे पूर्वी में एक है हनुमान पाठा का नाम आता है, वो भी बहुत बढ़िया पूर्वी लिखते थे। आचर वाला थोड़ा सा गाई तो। आचर हो आचर आचर, अब आचर हो आचर, तयाचर अरे भीज गइल बा अब नैनावा कनीर से। आचर अरे भीज गइल बा नैनावा कनीर से, ना जानी कामना पीर से ना। शोभेला लीलार पर बूंदा लाल खिलल बा दोनों तरफ के गाल। शोभेला लीलार पर बूना लाल खिलल बा दोनों तरफ के गाल। राह में चल तारी काटा ना गंभीर से, माने पूरा वही के अपन चल तारी। अरे राह में चल तारी काटा ना गंभीर से, ना जानी कामना पीर से। आंचल जो है ना आँख के आंसू से ना आँख आंसुए से। हाँ आंसुए से ना। हाँ आंचल भींज गई बा नैना। इतना याद में रो रही है कि नैना के जो नीर गीत है उससे पूरा आंचल भींग जा रहा है। भिखारी ठाकुर ही उस दौर में लिखे हैं बेटी बचाओ में कि जब छोटे एज में बेटियों का शादी हो जाता था, रुपया गिनाई ले आल पगाह धराई दिल, चेरिया के छेरिया बनावला है बाबूजी।
हाँ, बेटी बेचवा का है। बेटी बेचवा नाटक का गीत है, भिखारी ठाकुर ने लिखा है। मैंने कम उम्र में, आज भी लोग वो है। तो उस दौर के लिए माने इसलिए हम कर रहे हैं कि हर दौर में हर तरह के गीत हैं। जैसे एक और गीत है, जैसे पूर्वी में नहीं है उसका धुन, जैसे हमारे तरफ झूमर होता है, स्वर होता है, चैती होता है, चैता होता है, घाटो होता है, उसके बाद फाग फगुई सब है। पूर्वी के भी प्रकार है कि छपरा के लोग पूर्वी गाएंगे थोड़ा सा अलग तरीके से गाएंगे, आरा के लोग गाएंगे तो अलग तरीके से गाएंगे, सीवान के लोग गाएंगे तो थोड़ा सा अलग गाएंगे। तो हर क्षेत्र में हर तरह का दौर रहा है और हर गीत का अपना अपना एक दर्शन है, अपना अपना एक सोच है। अब जैसे झूमर है, झूमर का मतलब झूमना, वो महिलाओं का गीत है, पुरुषों का गीत नहीं है, वो महिलाएं गाती है। अरे फर गईले नेमुआ वो लर गईले डढ़िया से ना यहिले, फर गईले नींबुआ वो लर गईले डढ़िया से ना यहिले, हाँ जी ना यहिले, हो जी ना यहिले, परदेसी बलमुआ से ना यहिले। तो उसमें है कि जो नींबू का पेड़ पति ने लगाया था वो फर कर पूरा ऐसे उलर गया है और पति हमारे बाहर है, उसमें महिला कर रही हैं। फिर झूमर और तरीके और गाती हैं महिलाएं, माने पूरा साड़ी का वर्णन करेंगे, उसमें पूरा देह का वर्णन करेंगी, बहुत सारा चीज है। गीत का तो आधार मन इतना है कि कहिए मत। तो ये जो गाने हैं उस पे लोग नाचते भी है या फिर सिर्फ नाचते ऐसे भी। गाना? नहीं, नाचती हैं। जैसे झूमर जो है वो महिलाओं का गीत है, कजरी जो है महिलाओं का गीत है। तो ये सब महिलाएं गाकर डांस करती हैं, गाती हैं, अपना नाचती हैं, अपना एंजॉय करती हैं, लोग याद करती हैं। माने नाचने का है, झूमर मतलब झूम कर ही गाना है, नाम भी देखिए कैसा है। और पूर्वी जो है, पूर्वी अब नाच जो है लौंडा नाच ज़्यादातर उसमें ही सुनने को और देखने को मिलता है। नहीं तो ऐसे बहुत कम गायक हैं, जैसे भरत शर्मा व्यास एक हैं, देव कुमार सिंह हैं, और कुछ एक कल्पना ने भी गाया है। नया जनरेशन के गायक जो हैं नहीं गाते हैं। निर्गुण अब देखिएगा तो निर्गुण माने क्या नाम है, मदन दाय, जिनका मैंने रिकॉर्डेड फॉर्मेट हम लोग को सुनने को मिलता है। तो गांव में बहुत सारे लोग हैं जो कि हम लोग भी नहीं जानते हैं कितने लोग हैं। तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके क्षेत्र में इतने सारे कलाकार हैं तो इससे आमदनी बन जाता है या? अरे सुतला में रोहनी खाटी सब, अरे सपना देखिला राती, अरे सुतला में रोहनी खाटी सपना देखिला राती, सुतला में रोहनी खाटी सपना देखिला राती। नहीं बनता है ना, नहीं बनता है तभी अपना कला से समझौता करके मजदूरी करना आता है। वो लोग कला से समझौता तभी होता है कि जब उस कला से कोई इनकम नहीं है। तो जो मैंने खास करके कहा जाए, जो मजदूर वर्ग जो है, तो मजदूर वर्ग गाता बहुत बढ़िया है, नाचता बहुत बढ़िया है। जब तक शादी विवाह का अवसर है, लौंडा नाच अगर मान के चलिए करना है तो लौंडा नाच का भी एक सीजन है, एक समय सीमा है। उस समय सीमा तक ही वो कार्यक्रम हो सकता है, उसके बाद कोई काम नहीं है। तो अपना जिनको जैसा काम चाहिए, मैंने लगता है कि हम ये काम कर सकते हैं, वो काम करते हैं। उसी तरीके से लोक कलाकारों का भी एक है, जो लोक गायक है, उनका भी सीजन वही है। और मैंने वो भी जो मार्केट में आ गए, ठीक है ना, कुछ अलग आकर, तभी उनका डिमांड है। जो रियल में कुछ बेहतर गाना चाहते हैं उनका डिमांड बहुत कम है। कोई वो नहीं, वो सब क्या सुनना है, ऐसा भी है। तो लोगों को ये संगीत चाहिए भी, मगर ये सीजनल है और बाकी टाइम में यानी कि नहीं, देखिए संगीत लोगों को चाहिए, वो तो मान के चलिए हमको गाना है, ये कोई जरूरी थोड़ा कि हारमोनियम मिलेगा, ढोलक मिलेगा तभी हम गाएंगे। हम जहाँ हैं, जहाँ हमारा संगीत जीवित है,
गांव में तो कोई ना कोई हर दिन फंक्शन ही फंक्शन है। किसी घर मरनी है तो किसी के घर बर्थडे है तो किसी के घर ये है तो किसी के घर ये है। गांव के लोगों को कोई टेंशन नहीं है मनोरंजन के लिए। गांव में तो माने आप गांव के संस्कृति की अगर हम बात करें तो पहले तो फगुआ लोग गाते थे गोल में बैठकर और रात भर चलता था। शाम के 5 बजे बैठे सुबह के 6-7 बजे तक चलता है वो। और ये हर तरह के फाग फगुई होली लोग आते थे। माने चैत खत्म और फगुआ शुरू। चैत का जो सीजन होता है जब गेहूं कटता है उस समय चैता लोग आते हैं। हर गांव में करीब करीब भी दुगोला का कल्चर है, ब्यास लोग को बुलाकर है। लेकिन धीरे धीरे अब माने खत्म ही के कगार पर है। इसलिए कि वो संस्कृति जो पहले वाला जो गीत संगीत है अब आज का युवा पीढ़ी सुनना बहुत नहीं चाह रहा है। उसको चाहिए थोड़ा सा चिकनी चमेली जैसा। तो फिर आपने इतना सारा हमें समझाया कि ये वातावरण है और शायद ये सांस्कृतिक लोकगीत भी अभी शायद धीरे धीरे वो भी ख़त्म होता जा रहा है। तो फिर आप लोग का काम का महत्व क्या है, आपका सोच विचार क्या है और आप इसको जीवित कैसे रख रहे हैं? जिया जिया आरे जिया जिया खूबे जिया नाच के जान नाच के जान हो नाच के जान चल जाई नाच मार जाई हो नाच के जान बानी नाच के आरनी कबाट नाच हो निक बाट नाच हो निक बाट नाच निक बाट नाच हो निक बाट नाच हो निक बाट नाच हमरा लभर के लाश कफन ओढ़ल बाटे आज हमरा लभर के लाश कफन ओढ़ल बाटे आज। हमको जितना करना है जैसे जीवित एक तो है कि कोई कला का ठेका नहीं लेता है। कोई भी आदमी कला का ठेका नहीं ले सकता है कि हमारा वो ये है। लेकिन अंदर से इच्छा है, रुचि है। जिस दिन रुचि मर जाएगा, अंदर से रुचि चला जाएगा, उसी दिन हम भी छोड़ देंगे। तो उस रूप में है कि रुचि जब तक है, जब तक कला से हम जुड़े हुए हैं, कला जो भी है, एक जिज्ञासा भी है कुछ नए जानने का, एक याद भी है कि जो हमारे पूर्वज गाते रहे हैं उनको मान सम्मान से लेकर जो भी है नहीं मिला, तो उनको कैसे ये मंच पर लाया जा सकता है, उनसे कैसे एक जगह बुलाकर सीखा जा सकता है। तो एक ये बेचैनी भी है कि हमारा वो चीज़ है ना, वो हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है। तो भाई उस विरासत को दूसरे लोग यूज कर रहे हैं, हम जो है पीछे हैं। तो हमको जानना चाहिए कि क्या है। तो उसी रूप में हम लोग थोड़ा सा घूमते हैं, जब भी मन करता है घूम लेते हैं। तो जैसे आप पहले बोल रहे थे राजू जी कि गाने तो सदियों से बदलते आ रहा है, ऐसा नहीं है कि एक फिक्स्ड गाना है और वो ही गाया जा रहा है। तो ये गाने का परिवर्तन हमें थोड़ा आप समझा सकते हैं? कुछ अच्छे गाने भी रहे हैं, कुछ क्या माने बहुत सारे अच्छे गाने रहे हैं। तो उस गाने में ही जो है ना लोग माने जो अभी के दौर के जो हैं, खास करके जो माने नए लेखक जो है कर क्या रहे हैं कि उसी गाने को थोड़ा से ऐसे ऐसे करके उसी गाने को ही चेंज कर दे रहे हैं, उसका मीनिंग ही बदल दे रहे हैं पूरी तरीके से।
अच्छा, तो वो चीज़ मुझे माने ठीक नहीं है। ठीक, अगर आपको पार्टिकुलर नए संदर्भ में गीत लिखना है, अभी के दौर में लिखना है, तो एक नया दौर से ही गीत लिखना चाहिए। अगर धुन आपको लगता है कि उस धुन के साथ ये गाना जा रहा है, ठीक है। तो उस धुन को प्रयोग करना चाहिए। तो आप लोगों का प्रयत्न क्या रहा है इस नए दौर, नया जो आप वातावरण को फेस कर रहे हैं? आप किस तरह के गाना गाना चाहते हैं इस समय में, इस संदर्भ में? इस समय में समाज का जो परिवर्तन करने का जो एक माने सांस्कृतिक जो परिवर्तन हो रहा है, एक बेहतर समाज के निर्माण में क्या हो सकता है, जहाँ खुलकर सभी लोग रह सकते हैं। माने कोई किसी को दबा नहीं सके, कोई किसी के साथ, जैसे हमारे गांव में है कि कोई लड़का लड़की बात करता है तो फलाना माने फलाना के लगी खराब हो गई, लड़का ओकर बिगड़ गई बा। इसलिए गांव में परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है। शहर में हम लोग आते हैं तो हम लोग देखकर किसी को हम लोग ऐसे ताकते रहते हैं, इसलिए को कल्चर, शहर वाला कल्चर गांव में नहीं है। गांव में थोड़ा दूसरा है। अब उसको पर्दा कहिए या पूरा मर्दानगी वाला कंसेप्ट कहिए कि जो हम कहेंगे वही सही होगा, ये भी हो सकता है। तो अभी के दौर में मेरा यही लगता है कि हम खुलकर प्रेम करें, खुलकर भाईचारा बनाए रखें। तो भिखारी ठाकुर समाज लेखा में कोनो जातीय जो एक छोटा कलाकारों विभाजन जो नहीं है, खे जो गाना हम पूरी तरीके बदलता से हम चाहते हैं कि वो ओके माने खत्म हो जाए। चेंज कोई करता ये ना कहे कि हम ये हैं, वो हैं, वो अपन हिसाब से ओकरा सब में फेरा बराबर फेरी है। करता। मानव मानव के लिए, मानव मानव के लिए हो, न कि मानव एक दूसरे को शोषण करने के लिए हो। तो इस रूप में हम अपने आप को माने देखते हैं, और इस तरह गाने गाने में मुझे मजा आता है। ये तो बदलल तो नहीं के, अपने के जौन बात जड़िए से अपन बा, जौन पहले से होते रहल बात उन आदमी गावता बजावता। अब अपना से अब थोड़े अब हम लोग जोड़ब कि हई कदी तो हऊ कदी, हई कदी। अब फेरा फेरी दोसर हम का कहीं, अब दोसर हम का कहीं, जितना बा उतना में सब आदमी गावते बजावत बा। द लौंडा नाच में जो एक चीज़ है, हाँ। आपको बताना चाहेंगे कि लौंडा नाच में लोग भिखारी ठाकुर को फ्लो करते हैं। ठीक, और जो कलाकार होते हैं अनपढ़ होते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे, मैंने 99% हमको लगता है कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं। टीम मालिक भी जो होते हैं उनको सिर्फ एक मैनेजर है, मैनेजमेंट करते हैं। साटा लिखते हैं, परफॉर्म करने गए तो पहले से जो लोग ये लोग गाते आ रहे हैं उसमें एक करेक्टर है विदूषक, जिसको लबार बोलते हैं। वो नए संदर्भों को अपने कॉमेडियन के माध्यम से लाता है, लेकिन जो नर्तक हैं, जो नाच करते हैं, जो गाते हैं, वो नए संदर्भ नहीं ला पाते। कुछ लोग हैं जिनको लगता होगा कि नहीं हमको नए संदर्भ लाना चाहिए, तो अभी का जो दौर का जो पॉपुलर गीत है उस गीत को उसमें ऐड कर देते हैं। समझ गए? हाँ, हाँ, समझ गए। और ये जो जोकर या कॉमेडी वाला रोल है, ये किस तरह के सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि लौंडा नाच में वो ये मतलब सवाल जो है, देखिए, एक तो मनोरंजन की दृष्टि से भी देखिए, मनोरंजन के जरिए एक परिवर्तन का भी बात वो कहता है, मतलब अच्छे तरीके से बात करता है। जैसे कोई नाटक भी होता है, विदेशी या भिखारी ठाकुर कोई भी नाटक है, तो उसमें भी आप देखिएगा कि नए तरीके से वो माने अपने हिसाब से उसको जो लगता है कि हमको रखना चाहिए, माने प्रेजेंट ऑफ माइंड, वो लोग का बहुत माने अच्छा काम करता है। कोई ऐसा गाना आपको याद आ रहा है जहाँ पे इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया है? आई थिंक इसके केस में कमेंट्री होता है। हाँ, एक कमेंट्री। आप उसका जोक या फिर सटायर आप बताइए। हाँ, दूसरा। सटायर जो है एक जगह का घटना है कि भोरा का लिखे हो दल भातवा बरादर लिबरिया ना कौन बा भोरा कोनो गीत बा बंदा भतवा बना दली बढ़िया ना भाई याद हमारे याद नहीं। ऑब्सीन वाला बताइए ना, कुत्ता वाला। अच्छा, It's okay. तो एक कुत्ता वाला घटना था कि एक मेरे गांव में एक बाबा है, और वो पैसा किसी को कला को देते नहीं है। कलाकार को हमारे तरफ रिवाज में है कि नाच होता है तो आपके गाने पर खुश होकर हमने 10 रुपये का पुरस्कार दिया, 20 का पुरस्कार दिया, ऐसा होता है।
कलाकारों के सम्मान भी लगते हैं कि एक दिन में एक कलाकार 2-2 हज़ार रुपया भी मिल जाता है, एक्स्ट्रा है उसका आमदनी है। आपके कला पर खुश होकर मैंने 500 रुपया लुटा दिया, कुछ लोग ऐसे लुटाते हैं। तो एक दौर का बात है कि हमारे गांव में जो बाबा हैं, मेरे गांव में ही नाच हो रहा तो पैसा नहीं देते हैं, बहुत कंजर थे। समझ गए। तो एक भूअर जोकर है, अभी उनको रेलवे में जॉब हो गई, मैंने कला के बदौलत ही जॉब हुआ, लालू यादव ने दिया था। तो उनका जोकड़ा ही हमारे तरफ बहुत नाम था लौंडा नाच में, और हम लोग बचपन से देखते हैं। बहुत प्रेजेंट ऑफ माइंड उस बंदा की इतना कमाल का था ना मंच पर, कि अब कहिए मत। तो घटना है कि वो 10 रुपया दिए, मैंने उस जोकर को, हाँ 10 रुपया। और 10 रुपया देने के बाद वो आदमी बोला कि जान तो का हो भाई। तो चाचा नो मकई राखत रहन मचान पर, मक्का मचान पर राखत रहन, आ अंडरवियर ना पहनले रहन। आ मरलस पुरवैया नो तो पूरा लुंगी खुल गइल, आ कुकुर जाके थुथुनावे लागल। चाटे लागल। तब कहत रहे वो का जानता कि जा ये तारा दादी के जो पैसों लेला हमारा गाड़ियाइयो देला। उसका संदर्भ ये था, माने उसको कॉमेडियन बनाना है। तो हम लोग को नहीं मालूम था कि उसको कैसे मालूम था कि भाई वो गांव में कंजर हैं, चाहे प्रेजेंट ऑफ माइंड हो सकता है कुछ देखा होगा पैसा देते वक्त उनको। तो बोला कि मक्का जो है ना, मक्का को खेत लगाए थे बगल में, तो मक्का का रखवाली हमारे तरफ होता है सियार से, जानवर से। तो उसमें मचान लगाते हैं हम लोग, बम्बू का मचान होता है। तो उस पर वो सोए हुए थे, ठीक है, और अंडरवियर जो अंदर का जो नहीं पहने हुए थे, ऐसे लुंगी लपेटा था उन्होंने। पूर्वा जो हवा मारा पूरा वो पेन हो गया। आ कुत्ता जो आया मैंने पूरा उनका जो है ये कर लिया। वो तो वो संदर्भ में बोल रहे थे वो। तो ये मैंने प्रेजेंट ऑफ माइंड का घटना है, और ऐसे बहुत सारे घटना जो है उनका हम देखे हैं, खास करके उस एक्टर का, कि प्रेजेंट ऑफ माइंड इतना बढ़िया बढ़िया वो गाना गाते थे, हमको याद नहीं आ रहा है कि अब क्या बताया। तो इसका मतलब जब कुछ अजीब लाइक चीज़ें होती है हमारे समाज में, एक कल्पना का भी रुचि है ना, जिस तरह से ये कल्पना से इस तरह से लिख सकते हैं, इवन सोच भी सकते हैं, क्योंकि ये हर किसी को आता नहीं है। इस तरह के जो डबल मीनिंग हो सकते हैं या सटायर हो सकता है, या तो ये कल्पना कहाँ से पैदा होता है? गरम हो गई लहो, गरम हो गई, गरम हो गई लहो, गरम हो गई। एह बबू आन के ई जनग रम हो गई। ना पला एक बीता छोट हो गई, ना पला एक बीता छोट हो गई। एह बबू आन के ई जनग रम हो गई। समाज से ही होगा ना, उनके विजन, उनका अपना विजन है। उसके बाद वो देखते हैं जो परफॉर्मर होते हैं, तो इमेजिंग करते हैं ना। जैसे मान के चलिए एक परफॉर्म आदमी कहा जाता है थिएटर में कि आपके नज़र से भी हम मालूम कर लेंगे कि आपके भाव क्या चल रहा है। माने कुछ लोग बोलते हैं, उसी तरीके से नर्तक भी बोलते हैं कि आपका पैसा देने का भाव क्या है, जो लौंडा नाच करते हैं। कि आप जो पैसा हमको दे रहे हैं उसका भाव क्या है। तो उनका अपना परिकल्पना है। हो सकता है कि एक बड़ा एक्सपीरियंस का भी मामला है, बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो उनका एक लंबा एक्सपीरियंस है कि कौन किस तरीके का है, वो मन से ही देखते हैं। आपसे, आपके लिए जो एक गाना बहुत मायना रखता है, आप वो एक गाना मुझे सुना सकते हैं आपके लिए, जो बहुत ही लाइक आपको छूता है?
माई के अरे माई के सोया तोहरा माई के माई के सोया तोहरा माई के हम न बोली ना सहबी तोहरा माई के सोया बोली ना सहबी तोहरा माई के एक टुकी रोटी में 3 भाग करेली एक टुकी रोटी में 3 भाग करेली बोला गारी देली बाप और भाई के माई के बोला गारी देली बाप और भाई के माई के सैया बोली न सहबी तुहरा माई के नैहर में रहीती बकरी चरईती नैहर में रहीती बकरी चरईती लइका खेलती भौजाई के माई के अब लइका खेलती भौजाई के माई के सैया बोली न सहबी तुहरा माई के। वाह वाह, आपको ये गाना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आजकल के युग में जैसे कि हमारे मेहरारू खाई पिए के दुख बा, एक टाइम मिलत एक टाइम नइखे मिलत, तो मतारी ऐसन बिया कि एके टुकी रोटी बा, हमारा 3 गो मेहरारू हम, तो एक टुकी में मतारी एक टुकी में 3 भाग कर दिलस, एक टुकी मेहरारू के दे दिलस, एक टुकी हमारा मिल गई, एक टुकी माइयो खा लेली। तो परिवार कहतनी मेहरारू कि सैया हम ना रहब तारा चोरे, एले बढ़िया बाकी नैहर में रहब, अपना माई के बकरी चराई, भौजाई के लइका बोल खेलाई, भर पेट हमारे खाए के मिली, हम तार जोड़े रहब नहीं मतलब जी। और भाई आपके लिए कोई ऐसा गाना जो आपको आपका दिल को छूटा है? हमको भाव करता है। हे अचरा छोड़ के चल कहे दिहले हतना दूर रे माई, बबुआ 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 कही के अब पास बोलाई, तोरा बिना जी कैसे तोरे बहुरहवा रे माई, तोरा बिना जी कैसे तोरे बहुरहवा रे माई, माई माई Adventures of Movie is a podcast series stating how travels with music, memory, and identity. Nouri's adventures move like this from place to place, discovering musicians and their stories that she never heard before. This is the music of people who recall their lives through rhythms, instruments, and polyphons. Stay tuned for her Here, next stop. songs are passed on like life lessons, the memory for which is etched in the minds of the receiver forever. They improvise as they pass them on to the next receiver, who learns it in his own way, sings it in his own way. There's no one way of singing or remembering.
as long as it takes us back to that feeling. The expression in each song is so vivid, giving importance to the most negligible emotions inside of us. I feel these songs have cleansed my soul. It opened me to sides of myself that I had shut down. I was able to finally cry after a very long time, and it made me feel a little lighter. I realized that there is so much that I don't know, and my search is endless. I did not forget to take the kalonji seeds and the kasundi for Ravi. I had boarded the Sangamitra Express, and as it took off, I heard a tinny voice of a Nirgun singer from a mobile phone, which rocked me to sleep.